بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے روکا اور ان کی حقارت و ذلت بیان کی، اور اس طرح فرمایا یہ بت کیا ہیں جن کے لیے تم جھکتے ہو، ان کے لیے عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہو۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے آیا ہے، یعنی ان کے پاس جو نام نہاد مضبوط دلیل صرف یہ تھی کہ ان کے آباء و اجداد بھی یہی کرتے رہے اور بتوں کی پوجا پر لگے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا وہ تم کو کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ کسی کی پکار نہیں سنتے اور نہ ہی نفع و نقصان کے مالک ہیں، اور وہ ان بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جیسے جہلا اور گمراہ اسلاف کی پیروی کی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا، تم کو خبر ہے جن کی تم اور تمہارے اسلاف یعنی باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، وہ یقیناً میرے اور جہانوں کے رب کے دشمن ہیں۔ یہ ان کے بتوں کی الوہیت و عبادت کے باطل ہونے پر ایک قاطع دلیل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے واضح طور پر بیزاری کا اعلان کیا ہے، ان کی توہین کی ہے۔ اگر وہ نقصان کے مالک ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتے، اگر وہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اثر ڈالتے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ تو جو باتیں ہمیں کہتا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے بتوں کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر لعن طعن کرتا ہے، یہ حقیقتاً کہتا ہے یا مذاق کے انداز سے یہ باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں تم سے حق سچ بات کہتا ہوں کہ تمہارا معبود برحق صرف اللہ ہے، وہ تمہارا اور ہر چیز کا رب ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، وہی اکیلا عبادت کا حقدار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے چال چلوں گا جبکہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کہا، جب تم سب اپنے تہوار کے موقع پر جب یہاں سے جاؤ گے تو میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں کے ساتھ خفیہ کارروائی کروں گا۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنے دل میں کہی تھی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ بات سن لی تھی جب وہ ایک تہوار منانے کے لیے ہر سال شہر سے باہر جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے وہاں حاضر ہونے کے لیے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں بیمار ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پس اس نے ستاروں میں ایک نظر ڈالی، پھر کہا، بے شک میں بیمار ہوں۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام میں تعریض و اشارہ کر کے ایک مقصد حاصل کیا ہے کہ ان کے بتوں کی بے عزتی کی، اللہ کے دین برحق کی مدد کی، اور بتوں کی پوجا کرنے کو باطل اور غلط قرار دیا، کیونکہ وہ بت عبادت کے لائق نہیں بلکہ وہ توڑے جانے اور انتہا درجہ کی تذلیل و تحقیر کیے جانے کے مستحق ہیں۔ جب لوگ تہوار منانے کے لیے چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے شہر میں ٹھہرے رہے تو وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی خفیہ طور پر تیزی سے ان کے بتوں کی طرف گئے تو ان کو بڑی خوبصورت حالت میں پایا۔ انہوں نے دیکھا ان بتوں کے آگے ان کے تقرب کے لیے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے مذاق اور توہین کے انداز سے کہنے لگے، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بات نہیں کرتے؟ پس دائیں ہاتھ کے ساتھ مارنے کے لیے ان پر پل پڑے۔
दाएं हाथ के साथ मारने का जिक्र इसलिए किया कि वो ज्यादा ताकतवर, पकड़ में मजबूत और ज्यादा कारगर हथौड़े के साथ उनको तोड़ फोड़ दिया। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, उन तमाम को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मगर उनमें से जो सबसे बड़ा था उसको छोड़ दिया ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हथौड़ा बड़े बुत के हाथ में थमा दिया। गोया इशारा था कि इस बड़े को गैरत आ गई है कि मेरे होते हुए भी इन छोटों की पूजा पाठ हो रही है। जब वो लोग अपने त्योहार से वापस आए तो देखा कि उनके खुदाओं पर क्या क़यामत टूट चुकी थी, तो कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किसने किया? यकीनन वो जालिमों में से है। इस वाक़या में एक बड़ी खुली दलील थी, काश वो अकल से काम लेते। वो ये है कि तोड़ फोड़ के अंदाज से उनके माबूदों की खूब तवाज़ुन की गई। अगर वो माबूद बरहक होते तो वो अपने आप से उन लोगों को दूर रखते जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने अपनी जहालत, कम अक्ली, गुमराही और मुफसिदाना तबीयत की वजह से कहा, हमारे माबूदों के साथ ये काम किसने किया है? बेशक वो जालिमों में से है। उन्होंने कहा, हमने एक नौजवान को उन्हें गालियां देते सुना है, उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। यानी वो नौजवान इन पर ऐब लगाता और इनमें खामियां निकाला करता था, वही ये काम करने वाला और इनको तोड़ने वाला है। मुशरिकीन ने कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि वो इसे देख सके, यानी लोगों के बड़े इज्तिमा में उसे लाओ ताकि वो इस बात की गवाही दे और उसकी बात सुने और अपने खुदाओं पर नाज़िल शुद्दा अजाब का बदला लेकर उनकी मदद करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी सबसे बड़ा मकसद यही था कि तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं ताकि वो बुतों के परवहियत और पुजारियों को अपनी दलील से झूठा साबित कर दे। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को कहा था, ईद का दिन तुम्हारे वादा का दिन है और ये कि लोग सुबह के वक्त इकट्ठे किए जाएं। जब वो सारे मुशरिकीन इकट्ठे हुए और प्रोग्राम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो मुशरिकीन कहने लगे, ए इब्राहिम, क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तूने किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं है, बल्कि ये सारी तोड़ फोड़ इस बड़े ने की है। मुफस्सिरीन किराम के मुताबिक इसका मफहूम ये है कि उसने बड़े बुत ने मुझे इस काम पर उबारा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कलाम में तारीस व किनाया से काम लिया था, बस उनसे पूछ लो अगर वो कलाम करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात इसलिए की थी ताकि वो फौरन कहें ये तो बात नहीं करते और इस तरह वो एतराफ कर लें कि ये बाकी जमादात और पत्थरों की तरह ठोस और बेहिस व हरकत ही हैं। फिर वो अपने दिलों में मान गए, बस कहने लगे, बेशक तुम ही जुल्म करने वाले हो। यानी वो अपने आप को मलामत करते हुए कहते हैं कि तुम ही जुल्म करने वाले हो, यानी तुमने इनको निगरां के बगैर छोड़कर जुल्म का काम किया है। फिर वो अपने सरों के बल ऊंधे हो गए। जब वो सब लाजवाब हो गए और बहस मुबाहसा में मगलूब हो गए तो उन्होंने दलील व बराहीन को खैराबाद कहा और कुव्वत व ताकत इस्तेमाल करने पर आमादा हो गए, क्योंकि उनके पास दलील व हुज्जत तो थी नहीं। उनके पास अब इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था। उनके अकीदा के बेबुनियाद होने में कोई शक न रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको खूब जलील व ख्वार किया और अपने कलमे और दीन को बुलंद किया। अपने इस ख्याल को अमली जमा पहनाने के लिए उन लोगों ने ताकत के मुताबिक हर मुमकिन जगह से ईंधन जमा किया और एक मुद्दत तक लकड़ियां इकट्ठी करते रहे। वहाँ ऐसी सूरत हाल ने जन्म लिया कि जब उनकी कोई औरत बीमार होती तो वो नजर मानती कि अगर वो तंदुरुस्त हो गई तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियां उठाकर लाएगी। फिर उन्होंने उसके लिए एक बहुत बड़ा गड़ा तैयार किया और उसमें लकड़ियां डालकर आग जलाई। आग ने बढ़कर सुर्ख शोलों की शक्ल इख्तियार कर ली और उसके शरारे
बुलंद होने लगे। उस जैसी आग कभी नहीं देखी गई। फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में बिठा दिया जो हेजन नामी एक शख्स ने बनाई थी, जो अकराद में से था, और वो मंजनीक बनाने वाला पहला आदमी था। अल्लाह ताला ने उसको जमीन में दंसा दिया और वो क़यामत के दिन तक इसमें दंसता जाएगा। फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजबूती से बांधा और उस वक़्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अल्फाज कह रहे थे, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है। ए जहानों के रब, तारीफ सिर्फ तेरे लिए है और बादशाही भी तेरे लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं है। जब उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद करके और बांध कर मंजनीक के पलड़े में रख कर आग में फेंक दिया तो आपने कहा, हमें अल्लाह ही काफी है और वही अच्छा कारसाज है। उस वक़्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुली फिजा में आप अलैहिस्सलाम के सामने आए और कहा, ए इब्राहिम, क्या तुझे कोई जरूरत है? फरमाया, आपसे मुझे कोई काम नहीं। कहते हैं कि बारिश पर मुकर्रर फरिश्ता कहने लगा कि कब मुझे हुक्म हो और मैं बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म ज्यादा जल्दी पहुंचा। हमने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। कहते हैं कि उस दिन जमीन वालों ने आग से कोई फायदा न उठाया और उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिर्फ रस्सियां जलाई और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पसीना साफ करते रहे। उसके सिवा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नुकसानदह चीज लाहक नहीं हुई। उनके साथ साये का निगरान फरिश्ता भी था। आप अलैहिस्सलाम एक सरसब्ज बाग में थे जबकि आपके अतराफ में आग थी। लोग उसको देख रहे थे लेकिन उसकी तरफ पहुंच नहीं सकते थे और न ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर लोगों के पास आ सकते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने बहुत खूबसूरत बात कही इस मौका पर। जब उसने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो कहा, ए इब्राहिम, तेरा रब बहुत अच्छा है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने साहिबजादे को देखा तो पुकार कर कहने लगी, ए बेटे, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ कर कि तेरे पास आते हुए वो मुझे आग की तपश से महफूज रखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैं दुआ करता हूँ। फिर वो आग की तरफ आई तो आग उन पर कुछ असरअंदाज न हुई और उन्होंने वहां पहुंचकर अपने बेटे को गले लगा लिया, उसको बूसा दिया और वापस चली गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन मुकीम रहे और उन्होंने कहा, मैंने इन अय्याम में बेहतरीन जिंदगी बसर की जो उससे पहले मुयस्सर नहीं थी। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी सारी जिंदगी और इसी तरह हो जाए। मुख्तसर ये कि मुशरिकीन ने इंतकाम लेना चाहा लेकिन जलील व रसवा हुए और उन्होंने बुलंद होना चाहा लेकिन पस्त हुए, गालिब आना चाहा मगर मगलूब हुए। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उन लोगों ने बुरा तो उनका चाहा था मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। तब तक दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।